بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں درود اسلام کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت کے شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند مولائے کائنات و خاتون جنت ہونے کے ساتھ ساتھ علم و معرفت اور زاہد و تقوی کے پیکر تھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ آپ کا رنگ گورا مائل بس سرخ تھا، آنکھیں بڑی اور سیاہی مائل تھی، رخسار نرم تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کا پیدائش ہوا۔ ولادت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور اپنے لاب دہن سے گٹی دی۔ پھر 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، جس میں 2 دمبے ذبح کیے گئے، سر کا خلق کرایا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی تصدق فرمایا۔ اوصاف کریمہ: آپ بے حد نرم دل، جواد و سخی، عبادت و ریاضت گزار اور عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ آپ کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات تو کرتے ہی رہتے تھے، اس کے علاوہ 2 مرتبہ اپنا کل مال اور 3 مرتبہ نصف مال راہ خداوندی میں صدقہ کر دیا۔ آپ ہمیشہ فکر آخرت میں مہور رہتے تھے، ہمہ وقت سینہ خوف خدا سے معمور رہتا تھا۔ اطاعت و عبادت کے پیکر مجسم تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ مکہ معظمہ کے حرم میں ریت پر سر ملتا جا رہا تھا اور شوق الہی میں بے سدھ تھا۔ نزدیک آ کر جب دیکھا گیا تو پتہ چلا وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے نانا شافع مخشر، والد مولائے کائنات، ماں خاتون جنت، تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دربار ماں باپ کی بزرگی پر ناز کرنے کی نہیں ہے، یہاں تو فضل کا امیدوار ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ وضو سے فارغ ہوتے، فوراً آپ کا رنگ بدل جاتا۔ وجہ دریافت کی گئی تو ارشاد فرمایا، جو مالک عرش کی بارگاہ میں حاضری کا عزم کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ امیر المومنین سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے وہاں 6 ماہ اور کچھ ایام قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام شرائط قبول کی اور صلح ہو گئی۔ یوں صادق و مصدق نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی شہادت کے بارے میں۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا، یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ تشریف لائے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔
इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। आप अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा इबादत में मसरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को आवाज़ दी और हजरत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जा हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी जान और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमांचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे वालदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो कि तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रजी अल्लाह उन्होंने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की तबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ही नहीं है, बल्कि कातिल हसन रजी अल्लाह अन्हो भी है। इस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाजिया मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो आए और आपकी हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को तो कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल करोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमा तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फला कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो इस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है?
इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ में मुस्कुराया है हसन, जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियां लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुश्तबा रजी अल्लाह अन्हो ने जब ये सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया तो फरमाया, हुसैन याद है नाना जान की हदीस, मराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना जान मिराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे। तो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो महल देखे, एक महल हरा था और एक महल लाल था। इस वक्त रिजवाने जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाइए, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दोबाला होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हरा महल किसका है और लाल महल किसका है? कहा कि लाल तो हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का है और हरा महल हसन रजी अल्लाह अन्हो का है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा महल क्यों और हुसैन का लाल महल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहां रोया नहीं जाता, लेकिन ये शहादत हुस्नैन है। इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताता हूँ। अल्लाह के हुक्म से ये हरा महल इसलिए है कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो को जहर दिया जाएगा और इनका चेहरा मुबारक और जिस्म मुबारक हरा हो जाएगा, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा महल और हुसैन का लाल महल है। देखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मेराज पूरी हो रही है। इसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। इस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। इन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बहुत खूबसूरत था और नाम कासिम था और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शोहर की तरफ देखती, गोया इनके सामने अपनी बेबगी घूम रही थी। हाय बेबगी, हाय बेकसी, हाय बेबसी, लेकिन जुबान से कुछ कह न सकती थी। जब सब लोग चले गए, हता कि कोई ना बचा, तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो ने अपने बाजू पर बंधे तवीज को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तवीज खोला और खोलकर हजरत हसन ने कहा कि मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तवीज बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तुम शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। इस वक्त ये तवीज खोलकर देख लेना। इसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना जान के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम आली मुकाम 28 सफर को, एक रवायत के मुताबिक 29 सफर को और एक रवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े
कह की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ो तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तरीका बदतरीन बाप है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो को दफन करना चाहते थे तो बनु उमिया के वो गलीज जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, इसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। यहाँ तक कि मौरखीन ने लिखा कि जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा ना कहा, इसलिए कहा करो। लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा भला न कहा करो, इसलिए कि उन्होंने किया क्या है। ये किया है उन्होंने मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था, कितना जालिम था कि नाना के कदमों में नवासे को लेकर जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया। न सिर्फ जनाजा रोक लिया बल्कि उस लानती ने जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिए। बाज रवायतें यहाँ तक आती हैं जनाजा हसन पर तीर चलाए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो दोबारा कफन मिला है, हुसैन को तो एक बार भी। हसन को तो 2 बार कफन मिला है, हुसैन को तो एक बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो इस वक्त लोगों ने यानी जब हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी तो इस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर न जाए बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है कि वसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शहजादा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी तो अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। ये इस्लाम की ऐसी सच्ची हकीकत है कि जिसको सुनते ही आंखें रोती हैं और दिल दर्द से फटता है। जिन लोगों ने हकीकी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा के साथ कितना जुल्म हुआ है तो वो दिल कैसे तड़पते होंगे और वो सब लोग उस वक्त कितनी तकलीफ में मुब्तला होंगे। अल्लाह पाक उस लानती यजीद को दोज़ख में जगह अता फरमाए। बिला शक व शुबा उसकी जगह दोज़ख ही है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को सुनते नबी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ऐसा बना दे कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।